TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ معمول پر واپس آنا تمام کینیڈین کے لیے ایک طویل سفر ہوگا اور جو تبدیلیاں ہم نے کورونا وائرس کے دوران سیکھی ہیں کئی سالوں تک ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وہ صوبوں کے ساتھ مل کر معمول پر واپس آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ is something that is a long way off for all of us. And if we want life to get back to the way it was exactly before, it won't. There will be differences even a few years from now that we will have learned from dealing with this global pandemic that I think will be important lessons. As we move forward over the coming months, we will be able to see careful reopenings in certain sectors of the economy, certain things being allowed as people try to get back to something a little more like normal. But until we have a vaccine for COVID-19 or a system of treatments that are equivalent to a vaccine, where we can be sure that people will not, will not have COVID-19 be as lethal as it is now, we are going to have to be very careful. That caution will remain, because at any time, if we loosen our measures too much, we could find ourselves back in a tremendous spike. ڈیلی بریفنگ کے دوران ٹروڈو نے بتایا کہ ویج سبسڈی پروگرام کی لانچنگ کے چند گھنٹوں بعد ہی 10,000 کے قریب کاروباروں نے اپلائی کیا، جبکہ حکومت کو یہ توقع ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مزید کمپنیاں بھی اس پروگرام کی منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج سے درخواست وصولی کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ مارچ کے وسط کے حساب سے ادائیگی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 7 مئی سے درخواست دہندگان کو رقم ملنا شروع ہو جائے گی۔ Since the portal opened at 6 a.m. this morning, almost 10,000 businesses have already applied for it. That gives you a sense of just how many people this program will help. Right across the country, it's going to keep businesses and workers connected. And that gives people certainty that they'll have a job now and in the months to come to support themselves and their family. And it means employers will not just have the help to stay afloat through the tough time, but they'll be ready to gear back up when things get better. We all know a local salon or a gym that's had to close, a neighborhood restaurant or shop that's really struggling. And more importantly, we all know people who work there. They deserve a hand to get through this, and that's what the wage subsidy is for. کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نئے کیسز کی تصدیق کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 46,895 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نئے کیسز کی تصدیق کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 46,895 تک جا پہنچی ہے، جبکہ آخری اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,507 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ کیسز کینیڈا کے صوبے کیوبک میں سامنے آئے ہیں، جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 24,107 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 1,515 ہو گئی ہے۔ اونٹیریو میں متاثرہ افراد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 14,432 ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 865 ہے۔ اونٹیریو حکومت نے کرونا کی وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں میں فی گھنٹہ $4 اضافے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ ڈاگ فورڈ کا کہنا ہے کہ فی گھنٹہ $4 کا اضافہ پینڈیمک پے پریمیئر کے طور پر ملازمین کو دیا جائے گا۔ یہ رقم ملازمین کی معمول کی تنخواہ کے علاوہ ہوگی، اور یہ رقم دینے کا مقصد ان ملازمین کی جانب سے اس اہم مقصد کے لیے خود کو وقف کرنے اور خطرے کا سامنا کرنے کے صلے میں دی جا رہی ہے۔ یہ اضافی رقم ان ملازمین کو 16 ہفتوں تک دی جائے گی۔ کورونا سے متاثر ہونے والے صوبوں میں البرٹا تیسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وقت تک 4,480 افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں اموات کی تعداد 73 ہے۔ برٹش کولمبیا میں 1,948 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں اموات کی تعداد 100 ہے۔ کینیڈا میں جاری کرونا وائرس کی ہلاکتوں کے باوجود کچھ صوبے محتاط طور پر اپنی بند معیشتوں کو دوبارہ کھولنا شروع کرنے کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
कनाडा में जारी कोरोना वायरस की हलाकतों के बावजूद कुछ सूबे मोहतात तौर पर अपनी बंद मईशतों को दोबारा खोलना शुरू करने के मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि ओंटारियो और क्यूबेक रवां हफ्ते मईशत को खोलने के हवाले से अपने मंसूबों का ऐलान करेंगे। न्यू ब्रंसविक की हुकूमत ने कोरोना वायरस के बाइस आयद पाबंदियों में नरमी के 4 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबे का ऐलान कर दिया। सूबे में मुसलसल 6 रोज से अब तक कोरोना वायरस का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र मईशत की बहाली के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जब तक यकीन ना हो जाए कि कोरोना पर काबू पा लेंगे, इस वक्त तक कारोबार नहीं खोलेंगे। दूसरी जानिब कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने फिशिंग इंडस्ट्री के लिए 44 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया है। टोरंटो में दर्जनों मुजाहिरीन ने ओंटारियो की सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज किया, जहां जिस्मानी दूरी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और कोरोना वायरस के सबब होने वाले लॉकडाउन को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। दरियासना हेल्थ कनाडा ने मलेरिया की दवाओं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल से मुतनब्बे किया है। कनाडा के महकमा सेहत के हुकाम ने कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इंसदाद मलेरिया दवाओं क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के खिलाफ इंतबा जारी किया है। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर हफ्ते को कहा कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। मॉन्ट्रियल में 11,621 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 938 अफराद हलाक हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में कोरोना वायरस के एक ही दिन में 840 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 24,107 हो गई है। मजीद 69 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद इस वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,515 हो चुकी है और उनमें से अक्सरियत उन अफराद की है जो लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में मुकीम थे। मॉन्ट्रियल में 11,621 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 938 अफराद हलाक हुए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त 1,518 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं और 215 मरीज इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में दाखिल हैं। गुज़िश्ता एक दिन के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के बायस 69 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और सूबाई हुकूमत के मुतवक्के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 अप्रैल तक 1,263 अफराद इस वायरस के बायस हलाक हो सकते हैं। क्यूबेक के प्रीमियर गुज़िश्ता कई दिनों से सूबे को दोबारा खोलने का कह रहे हैं, ताहम उनके हालिया बयान में उनका कहना था कि बुजुर्ग अफराद के इस वायरस से मुतासर होने के ज़्यादा खदशात हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक हुकूमत रवां हफ्ते सूबे को दोबारा खोलने का मंसूबा पेश करने जा रही है, लेकिन प्रीमियर का कहना है कि उम्र रसीदा अफराद को दूसरों से महफूज फासले पर रखने की ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि अपने प्यारों से भी। क्यूबेक के प्रीमियर गुज़िश्ता कई दिनों से सूबे को दोबारा खोलने का कह रहे हैं, ताहम उनके हालिया बयान में उनका कहना था कि बुजुर्ग अफराद के इस वायरस से मुतासर होने के ज़्यादा खदशात हैं। उनका कहना था कि मैं बुजुर्ग अफराद को तजवीज़ दूंगा कि अपने पोते पोतियों को गले न लगाएं। उनका कहना था कि ये मुश्किल है और हम सब के लिए अफसोसनाक भी है कि एक दूसरे को 2 मीटर की दूरी से देखें। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कूल दोबारा खोलना चाहते हैं। स्कूलों के दोबारा खुलने में उनका सबसे बड़ा खौफ वो वक्त है जब बच्चे अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। उनका कहना था कि हम हर हफ्ते ये जांचेंगे कि सूबे में कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है या नहीं। क्यूबेक पुलिस वॉचडॉग पुलिस की एक और कार्रवाई के दौरान 60 साला शख्स की हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक पुलिस वॉचडॉग पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान 60 साला शख्स की हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। बीईआई की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें एक शख्स की तकलीफदेह हालत का बताया गया है। जबकि पुलिस और पैरामेडिक्स का अमला वहां पहुंचा तो उस शख्स ने इलाज से इनकार कर दिया। कुछ ही घंटों बाद इसी शख्स के बारे में दूसरी कॉल मौसूल हुई। इस बार पुलिस अफसरान ने उसे हथकड़ी लगाना जरूरी समझा ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। अस्पताल मुंतकली के दौरान इस शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जहाँ उसकी मौत वाक़ई हो गई। कोरोना वायरस की वजह से 8 की जगह सिर्फ 4 तफ्तीशकारों को केस की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से आए रोज़ मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जबकि टैक्स स्पेशलिस्ट के मुताबिक टैक्स दहिंदगान को कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में टैक्स की अदायगियों के लिए तारीख में 1 जून तक तौसी की गई है। टैक्स स्पेशलिस्ट का कहना है कि कनाडा में कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की वजह से टैक्स हिंदगान को किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अपने टेलीफोनिक इंटरव्यू में टैक्स स्पेशलिस्ट इरफान सिद्दीकी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से दफातर बंद हैं, लोग घरों से नहीं निकल सकते। ताहम टैक्स की अदायगी की तारीखों में तौसी से लोगों को फायदा होगा कि अब टैक्स आसानी से अदा कर सकते हैं। फरवरी से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट अप्रैल 30 थी और इसको एक्सटेंड करके इन्होंने जून 1 कर दी है।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज और क्लोज हैं, इवन दो के अकाउंटेंट एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घर से निकल नहीं रहे। तो जैसे डेट एक्सटेंड होगी तो उन्हें ज़रा आसानी ये हो जाएगी कि वो ड्यू डेट से पहले पहले अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से शहरियों की इमदाद के अलावा कारोबारों की मदद के लिए भी पैकेजेस दिए गए हैं। अभी ये जो इन्होंने अनाउंस किया है $82 बिलियन का इमरजेंसी कोरोना सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, तो उसमें लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि अब जैसे इसको अगर मैं चाहूँ तो 3 कैटेगरीज में कर सकता हूँ। एक तो कैनेडियन फैमिलीज को उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, फिर कैनेडियन बिजनेसेस जो हैं, स्मॉल बिजनेसेस एंड लार्ज बिजनेसेस, और तीसरा जो है स्टूडेंट्स जो हैं, इन तीनों एरियाज में इन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो भी इमदाद लोगों को दी जा रही है उसका ज़्यादा फ़ायदा कम आमदनी वाले तबके को होगा। कनाडा में 18 साल से ऊपर तमाम अफराद को टैक्स अदा करना होता है। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कम आमदनी वालों को कुछ सहूलियात दी जाती हैं। कनाडा में सिलसिला ये है कि 18 ईयर्स एंड अबव जो भी इंडिविजुअल होता है उसको टैक्स फाइल करना होता है, और कैनेडियन गवर्नमेंट हर टैक्स पेयर को नॉर्मल हालात में भी कुछ बेनिफिट्स देती है जो लो इनकम ग्रुप वालों के टैक्स पेयर को मिलते हैं, जैसे जीएसटी क्रेडिट्स मिलते हैं, और प्रोविंशियल हर प्रोविंस अपने हिसाब से, मैं ओंटारियो में तो ओंटारियो प्रीमियम बेनिफिट के नाम से कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि तमाम इवन स्टूडेंट हो, आपका अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, रिफ्यूजी हो, एवरीवन हैज टू फाइल द टैक्स। उन्होंने बताया कि वो हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन है और जो लोग भी कोरोना से मुतासिर हुए उनके लिए हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इकदाम किए हैं। यहाँ पर जो हम लोग हैं, जितने भी जो अफेक्ट हुए हैं इससे कोविड-19 की वजह से, गवर्नमेंट ने हमें बड़ी हेल्प की है और एवरीवन इज गेटिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ताकि वो अपने तौर पे सही रह सकें, उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। ये तमाम अच्छे बेनिफिट्स हैं, मतलब वी आर वेरी हैप्पी विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और सनती मरकज़ शंघाई में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। ये एक और नज़ीर है जो चीन ने दुनिया के सामने पेश की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के मरकज चीन ने आलमगीर वबा पर एक और कामयाबी हासिल कर ली। अपने 2 बड़े शहरों में स्कूल खोल दिए, हजारों तलबा ने क्लासों में हाजिरी दी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और सनती मरकज शंघाई में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। ये एक और नज़ीर है जो चीन ने दुनिया के सामने पेश की है, किस तरह इसने कोरोना की वबा पर मुनज़्ज़म तरीके से तनदही के साथ काबू पाया। कोरोना से ज़्यादा मुतासरा शहर वुहान में भी स्कूल 6 मई से दोबारा खुलने का ऐलान किया गया है। खबरों में बताया गया है कि स्कूल जाने वाले तलबा का दर्ज हरारत स्कूलों के दरवाजे पर चेक किया जाएगा। हजारों तलबा कई माह तक स्कूल बंद रहने के बाद आज शंघाई और बीजिंग में अपने स्कूलों को लौटे। शंघाई में मिडिल और हाई स्कूल के फाइनल ईयर के तलबा ने क्लासेस अटेंड की, जबकि बीजिंग में हाई स्कूल सीनियर्स को अपने कैंपस लौटने की इजाजत दी गई है ताकि वो यूनिवर्सिटी में दाखिले के इम्तिहान की तैयारी कर सकें। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन वबाई बीमारी कोरोना वायरस से मुतासिर होने के तकरीबन 1 माह बाद मंजर आम पर आए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बोरिस जॉनसन का कहना था कि कोरोना वायरस बड़ा चैलेंज था। बरतानिया में अब कोरोना वबा का जोर टूट रहा है। नॉर्वे हुकाम की जानिब से आलमी वबा कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद नॉर्वे भर में स्कूल खुलने का ऐलान किया गया है। खुलने वाले स्कूल्स की क्लासेस में बच्चों की तादाद कम से कम 15 तलबा तक कर दी गई है। जनूबी कोरिया की खारजा पॉलिसी के मुशीर चोंग इन मून ने बयान दिया है कि उनकी हुकूमत को इस बात पर पक्का यकीन है कि डिक्टेटर किम जोंग उन मरे नहीं हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन की जिंदगी और सेहत से मुतालिक जनूबी कोरिया की एक अहम सरकारी शख्सियत ने कहा है कि किम जोंग जिंदा और सेहतमंद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया की खारजा पॉलिसी के मुशीर चोंग इन मून ने बयान दिया कि उनकी हुकूमत को इस बात पर पक्का यकीन है कि डिक्टेटर किम जोंग उन मरे नहीं है। उन्होंने मीडिया को बताया कि किम जोंग उन 13 अप्रैल से मुल्क के वॉरेंस एरिया में रिहाइश पजीर हैं। इस दौरान कोई मशकूक सरगर्मी देखने में नहीं आई। वाज़ेह है कि चीन और जापानी मीडिया के रिपोर्टर्स शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन की जिंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। चीनी जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि किम जोंग मर चुके हैं, जबकि एक जापानी रिपोर्टर कहती हैं कि वो कोमा में हैं।
دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,07,800 ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,07,800 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 55,415 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 9,87,322 ہو چکی ہے۔ بیلجیم میں جان لیوا کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 7,207 ہو گئی۔ یہ تعداد لاک ڈاؤن کے 40 روز کے دوران سامنے آئی ہے۔ اسپین میں کورونا کے اب تک 2,26,629 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے اموات 23,190 ہو چکی ہیں۔ اٹلی میں کورونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 26,644 ہو گئی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 1,97,675 رپورٹ ہوئے ہیں۔ فرانس میں کورونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 22,856 ہو گئی ہیں، جبکہ کورونا کیسز 1,62,100 ہو گئے۔ جرمنی میں کورونا سے کل اموات کی تعداد 5,976 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کیسز 1,57,770 ہو گئے۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 20,732 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کیسز کی تعداد 1,52,840 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2,805 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 1,10,130 ہو گئے۔ ایران میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,710 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 90,481 ہو گئے۔ چین، جہاں دنیا میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا، وہاں اس وائرس سے کل ہلاکتیں 4,633 ہو گئی ہیں، جبکہ کل کورونا کیسز 82,830 ہو گئے۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 747 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 80,949 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 139 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 17,522 تک جا پہنچی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کورونا ایک دھوکہ ہے۔ اس قسم کی بات کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ بیکار ڈیموکریٹ اور میڈیا دھوکہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اپنے دور صدارت کے آغاز سے ہی میڈیا سے نالاں رہے، کورونا وائرس کے بحران کی وجہ سے ان کی امریکی میڈیا کے ساتھ نئی چپقلش پیدا ہو گئی ہیں۔ اپنے ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے صحافیوں کی جانب سے سوالات پر روزانہ کی وائٹ ہاؤس کورونا وائرس بریفنگز ختم کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کورونا ایک دھوکہ ہے۔ اس قسم کی بات کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ بیکار ڈیموکریٹ اور میڈیا دھوکہ ہے۔ ٹرمپ نے اپوزیشن اور میڈیا کی ایک ساتھ سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کی جھوٹ بولنے پر جب پکڑ ہوئی تو انہوں نے غلطی مان بھی لی، لیکن اعتراف جرم کے باوجود یہ لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔